بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب کبھی بھی دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی مسلمان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے منہ سے یہ بات ضرور سنی جاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن امام مہدی علیہ السلام ضرور آئیں گے، اور یہ امام مہدی علیہ السلام ہماری اس دنیا میں آ کر نہ صرف ان مظلوموں کا بدلہ لیں گے بلکہ ان پر ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کو ہار کا مزہ بھی چکھائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی وقت وقت پر آپ لوگ امام مہدی علیہ السلام کا نام سنتے ہی رہتے ہوں گے، کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ نہ صرف یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں بلکہ فیس بک پر بھی اس سے جڑی ہوئی بہت ساری ویڈیوز آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر امام مہدی علیہ السلام کون ہے، اور اس انسان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے ہی مسلمان آج بڑی بے صبری کے ساتھ اس انسان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر اس انسان کا پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام سے جڑی ہوئی اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر امام مہدی علیہ السلام کب، کیسے اور کیوں آئیں گے۔ کیا امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں یا پھر ان کے آنے میں کتنا وقت ہے؟ تو دوستو، حضرت امام مہدی کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری دنیا کے تینوں ہی ابراہیمی مذہب یعنی یہودی، مسلم اور عیسائی قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ان تینوں ہی مذہب کو فالو کرنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہماری یہ دنیا ایک دن ضرور ختم ہوگی، اور دنیا ختم ہونے کے بعد انصاف بھی ضرور ہوگا۔ یعنی ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہنے والے تمام بندوں سے ان کی طرف سے کیے گئے برے کاموں کا حساب لے گا۔ لیکن دوستو، بھلے ہی ان تینوں ہی مذاہب کے لوگ قیامت پر تو یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ قیامت کب اور کیسے آئے گی، اس بارے میں ان تینوں ہی مذاہب کے ماننے والے لوگوں کا اپنا الگ الگ نظریہ ہے۔ جہاں ایک طرف یہودیوں کا ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا ایک مسیح ضرور آئے گا جو پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرے گا۔ حالانکہ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہودی لوگ جس مسیح کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے ہماری دنیا میں واپس آ کر ہماری حکومت قائم کرے گا، اس مسیح کے بارے میں مسلمانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس ضرور آئے گا۔ لیکن مسلمان اس کو مسیح کی طرح نہیں بلکہ ایک دشمن کی طرح دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہودی کا یہ آنے والا مسیح کوئی مسیح نہیں بلکہ وہی ہوگا جس کو اسلام میں دجال کا نام دیا گیا ہے۔ وہیں دوسری طرف عیسائیوں کا قیامت کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ہمارے اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس ضرور آئیں گے۔ حالانکہ دوستو، مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی نظریات ہیں، اور مسلمانوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس ضرور آئیں گے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں ایک طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوں گے، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں بلکہ ڈائریکٹ اتارے جائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ظاہری موت آئی ہی نہیں تھی بلکہ ان کو تو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے اس دنیا میں واپس آنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے مذہبی کتابوں میں قیامت کی نشانی کے طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ یعنی ایسے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کے پورے ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی، یعنی ہماری یہ دنیا ختم ہوگی۔ اور قیامت کی ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا پیدا ہونا بھی ہے۔ یعنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہماری دنیا کا آخری وقت چل رہا ہوگا اور ہماری دنیا میں گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں گے، یعنی نا انصافی، قتل، چوری، زیادتی، یہ ساری چیزیں بالکل عام ہو چکی ہوں گی،
तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होकर इस दुनिया को एक बार फिर से इन सारे गुनाहों से पाक कर देंगे। ना सिर्फ पूरी दुनिया से जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करेंगे, बल्कि एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत भी कायम करेंगे कि जिसमें हर इंसान के लिए अमन और सुकून होगी। दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश मदीना शहर में होगी और उनका नाम या तो मोहम्मद या फिर अहमद होगा। उनके वालिद यानी फादर का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम आमना होगा। वही बात करें अब अगर इनके ख़ानदान की, तो हदीस की किताबों से ये बात क्लियर होती है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जन्म इस्लाम के चौथे खलीफा यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी बीवी यानी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से होगा। यानी ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल में पैदा होंगे। दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बाद में मदीना से बैतुल मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन की तरफ चले जाएंगे। वहीं बात करें अगर इस्लाम के दूसरे सबसे बड़े गुरोह यानी शिया लोगों की, तो आपको बताते चलें कि शिया लोगों का ये नज़रिया है कि हज़रत इमाम मेहदी तो पहले ही पैदा हो चुके हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की हिफाजत की खातिर लोगों से अपने आप को छुपा कर रखा है। जब अल्लाह ताला चाहेगा, यानी जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ये महसूस होगा कि अब उनके सामने आने का वक्त हो चुका है, तो खुद ब खुद पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे और पूरी दुनिया से नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम को ख़त्म करके एक बड़ी मुस्लिम सल्तनत कायम करेंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जिस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लोगों के सामने अपने आप को जाहिर करेंगे, यानी लोगों को ये बताएंगे कि मैं ही वो इमाम मेहदी हूँ कि जिसका तुम लोग सैकड़ों सालों से इंतज़ार कर रहे हो, इस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 40 साल होगी और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का ऐलान कहीं और नहीं बल्कि इस्लाम की सबसे पाक जगह यानी काबे के पास करेंगे। और अपने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का ऐलान करते वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सफ़ेद कपड़े पहने हुए होंगे। उसके अलावा उनके पास इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ के साथ साथ उनका झंडा और उनकी एक तलवार भी मौजूद होगी। और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारी इस दुनिया में लगभग 7 साल तक कायम रहेगी। दोस्तों, भले ही कुरान में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र ना आया हो, लेकिन इस्लाम की दूसरी हदीस की किताबों में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत ज़्यादा आया है, इतना ज़्यादा कि जिसका जिक्र करना इस छोटी सी वीडियो में मुमकिन भी नहीं है। इसके अलावा हदीस की बहुत सारी किताबों में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हमारी दुनिया में ज़ाहिर होने से पहले की कुछ निशानियां भी बयान की गई हैं, जिसमें से एक निशानी ये भी है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में ज़ाहिर होने से पहले एक चमकदार सितारा मशरिक की साइड से निकलेगा। ये सितारा इतना ज़्यादा चमकदार होगा जिसे देखने में हम लोगों को 14वीं का चांद नज़र आता है, यानी ये सितारा इतना ज़्यादा रोशनी देगा। इसके अलावा ये सितारा इस वक्त भी आसमान पर नज़र आया था कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान आया था। उसके अलावा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, तब भी ये सितारा आसमान पर ज़ाहिर हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब फिरौन को इसकी पूरी फौज के साथ समंदर में डुबोया गया था, उस वक्त भी ये सितारा बिल्कुल पहले की तरह ही आसमान पर नज़र आया था। उसके अलावा आमतौर पर भी ये सितारा लगभग हर 80 साल के बाद आसमान पर नज़र आता है और आखिरी बार ये सितारा 1986 में आसमान पर देखा गया था। अगली बार उम्मीदों के मुताबिक ये 260 से लेकर 70 के बीच नज़र आएगा। इसके अलावा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए ज़ाहिर होने की एक निशानी ये भी है कि सारे हाजी बिना इमाम के हज करेंगे और ऐसी हालत में इन सभी लोगों को लूट लिया जाएगा। मिना के मकाम पर जंग भी होगी, जिसकी वजह से लोगों का खून टांगों तक पहुंच जाएगा। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स का ये मानना है कि हदीस की किताबों में मौजूद इस वाक़ये से मुराद वो हादसा है कि जो 1979 में मक्का शहर में पेश आया था। क्योंकि दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग तो ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि 1979 में
अरब के कुछ लोगों ने काबा के अंदर घुसकर न सिर्फ हाजियों को कैदी बना लिया था, बल्कि उनमें से एक आदमी ने अपने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का भी दावा कर दिया था, जिस खतरनाक हादसे की वजह से लगभग 250 हाजियों के साथ साथ इन हमला आवरों और कुछ सिपाहियों की भी जानें चली गई थी। दोस्तों, अगर आप लोग 1979 में होने वाले इस खतरनाक हादसे के बारे में तहकीक चाहते हैं तो हम इस वाक़े के वीडियो गुज़श्ता हफ्ते बना चुके हैं और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके अलावा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने की एक निशानी ये भी है कि रमज़ान के एक ही महीने में 2 बार सूरज ग्रहण लग जाएंगे, यानी 2 बार सूरज ग्रहण होगा, जो कि आज के दौर में पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों एक ही महीने में 2 बार ऐसा नहीं होता है। इन तमाम निशानियों के साथ साथ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने से पहले की एक निशानी ये भी है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने से पहले हमारी ये दुनिया एक बड़ी जंग का सामना करेगी। इस बड़ी जंग का जिक्र ना सिर्फ इस्लाम मज़हब की बहुत सारी किताबों में मौजूद है, बल्कि साथ साथ ईसाई मज़हब की किताब यानी सबसे मुक़द्दस किताब बाइबल में भी मौजूद है। यही वजह है कि आज के दौर में बहुत सारे लोग इस जंग को थर्ड वर्ल्ड वार के तौर पर भी देखते हैं, यानी बहुत सारे लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि ये वही जंग हो के जिसको आने वाले दौर में हम थर्ड वर्ल्ड वार के तौर पर देख सकेंगे। दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कब यानी कौन से साल में आएंगे, इस बात को तो कोई भी इंसान नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर इस्लामिक स्कॉलर्स का ये मानना है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का वक्त बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, क्योंकि उनके आने से पहले की जो निशानियां भी बताई गई थी उनमें से लगभग ज़्यादातर पूरी हो चुकी है। उसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि इस्लाम के हिस्ट्री में वक्त वक्त पर बहुत सारे झूठे लोगों ने अपने आप को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा भी कर डाला था, लेकिन हदीस की किताबों में बताई गई निशानदही के जरिए से मुसलमानों ने बहुत जल्द ही ये जान लिया था कि ये कोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि एक झूठा इंसान है। जज़ाकल्लाह।